ڈان نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید. میں ہوں عنبر شمسی. میاں نواز شریف تیسری بار بھی اپنی مدت پوری نہ کر پائے. سپریم کورٹ نے متفقہ طور پر ان کو نااہل قرار دے دیا. وہ سبکدوش ہو گئے. الیکشن کمیشن پاکستان نے بھی ڈی نوٹیفیکیشن جاری کر دی. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ تاریخی دن ہے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں تاریخ دن ہے. کیا دوبارہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام کا دور شروع ہو گیا ہے؟ ان تمام چیزوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی صاحب. آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر مصدق ملک, شہری رحمان صاحبہ پیپلز پارٹی کی, اور علی ظفر صاحب ماہر قانون. آپ سب کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. پہلے تو ڈاکٹر مصدق ملک آپ سے شروع کروں گی. آپ نے جو تعارف کروانا میں نے تو اسی لیے آپ سے پوچھنا چاہوں کہ میں کیا تعارف کروں, سابق وزیر اعظم کے سابق ترجمان. بڑی ذرا نوازی آپ کی. تو میڈیا رپورٹس اب یہی کہہ رہی ہیں کہ شہباز شریف صاحب اگلے وزیر اعظم بنیں گے. درمیان میں کون بنے گا؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں. ویسے تو پارٹی فیصلہ کرے گی اپنی پارلیمانی اجلاس کے اندر کہ کون کینڈیڈیٹ ہونا چاہیے, لیکن ہم جس نہج کے اوپر ہیں اپنے تمام جو پروجیکٹس مکمل کرنے کی, ان کے آنے سے بڑا زبردست بوسٹ ملے گا اگر وہ آتے ہیں. سو آئی تھنک ہی وڈ بی اے ویری گڈ کینڈیڈیٹ. لیکن یہ فیصلہ جو ہے یہ پارٹی کا ہے, اور جو انٹرم, یہ اس سے اندازہ یہی ہو رہا ہے کہ اس وقت جو پاور جو ہے وہ کنسنٹریٹ کرنا چاہ رہے ہیں شریف خاندان کے اندر ہی. نہیں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کا اپنا کوئی قد نہیں ہے, اگر آپ کو نظر آتا پنجاب کی اندر جو بھی ترقی ہوئی ہے اس کے بہت سے لوگ اس پہ تنقید بھی کرتے ہیں, لیکن ہماری طرح کے بہت سے لوگ ہیں جو مدعی ہیں. وہ ہم صرف نہیں ہیں, چینیوں سے بھی اگر آپ بات کریں تو انہوں نے پنجاب سپیڈ کے نام سے جو نیا ایک ایڈیم انٹروڈیوس کیا ہے, جو کوئلے کے کارخانے 20 مہینے اور 26 مہینے میں لگے ہیں, جو ایل این جی کے کارخانے لگے ہیں, جو سڑکیں بنی ہیں. پرفارمنس کارکردگی کے بنا پر اس لیے نہیں میرے خیال میں اگر آپ سوچیں, اگر آپ واقعی اس کو کسی اینالیٹیکل طریقہ کار سے سوچیں تو آپ سمجھیں گے, آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کی تاریخ میں ہی از بن ون آف دا بیسٹ پرفارمنگ لیڈرز. تو اگر اس نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو ہی از اے ویری اسٹرانگ کینڈیڈیٹ. لیکن پارٹی کل فیصلہ کرے گی یہ بھی کہ کون, اگر وہ آتے ہیں تو کون انٹرم پیریڈ میں ہوگا, اور اگر کسی اور کو پرماننٹلی پارٹی لانا چاہتی تو وہ بھی کل فیصلہ ہوگا. شہری رحمان صاحبہ, یہاں میں آپ کو گفتگو میں شامل کرنا چاہوں گی کہ جب یوسر رضا گیلانی صاحب کو نااہل قرار دیا گیا تھا, اس کے بعد مشاورتی عمل چلا تھا, کنسنسس کینڈیڈیٹ راجہ پرویز جو ہے وہ سامنے آیا تھا ان کا نام. اس دوران بھی یہاں آپ ایسے کنسنسس کینڈیڈیٹ نہیں تھے. پہلے شہاب الدین صاحب کا نام آیا تھا, اور شہاب الدین صاحب کا پھر وہ ایورڈین کا ایشو آ گیا تو پھر وہ آ گئے تھے. اس کے بعد راجہ پرویز اشرف آ گئے تھے. تو اس مشاورتی عمل میں جی کس طرح سے پیپلز پارٹی جو ہے اپنا کینڈیڈیٹ, جو پریس کانفرنس ہوئی تھی آپ کہتے کہ آپ بھی اپنا نامزد کریں گے, کوئی نام سامنے ہے مشاورتی عمل میں کس طرح سے شامل ہوں گے؟ جی دیکھیے, سب سے اہم بات اس وقت ملک کو اور سیاسی پورے پس منظر کو پرامن رکھنے کی ہے, آئینی رکھنے کی ہے, اور ایک میں سمجھتی ہوں ٹرانسفر آف پاور جو ہوتا ہے اس کو ایک پروسیس اور ایک عمل کے ذریعے جانا چاہیے جو کانسٹیٹیوشنل اور بائی دا بک ہو. اب جو سچویشن رائز ہوئی ہے, برہانی کیفیت جو کہا جا رہا ہے, میں ذرا معذرت سے کہوں گی کہ برہان تو ہماری جو ڈھٹائی سے جواب دہی کا عمل میں نہیں جانے کا جو انکار تھا بار بار رولنگ پارٹی کا, حکمران جماعت کا, اس سے برہان پیدا ہوا ہے. اب کوشش یہ ہونی چاہیے سیاسی قوتوں کی اور پارٹیز کی اور سب کی کہ برہان سے اب جو چلتا رہے اس سے نکلیں. اور ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کینڈیڈیٹ, لیکن ہم نے یہ عمل کمپلیٹ نہیں ہوا ہے, کل سے مشاورتی عمل شروع ہو جائے گا, اور ہم اپوزیشن کی کیونکہ ہم لیڈ کرتے ہیں پارلیمان میں, ہم دوسری پارٹی سے اور جماعتوں سے بھی مشاورت کریں گے. اس وقت راجہ پرویز صاحب کا حق آپ کو یاد ہوگا, اس وقت بھی ہمارا کولیشن تھا, اس وقت ایبسولوٹ میجورٹی نہیں تھی, وہ بھی ہم نے بالکل پرامن طریقے سے مینیج کیا اور کہا کہ بھئی یہ جو کورٹ کا فیصلہ ہے وہ ہوگا. جو انہوں نے کام مانگا تھا وہ راجہ پرویز اشرف نے پھر کر کے دیا. اور اب جو میں آپ سے بات عرض کر رہی ہوں, دیکھیے اس وقت کسی کے ذات کی بات نہیں ہے, اس وقت کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ذات کی بیٹل ہے, یہ کسی کے ذات کی
स्ट्रगल नहीं है, ये एक जमहूरी अमल पे एक बहुत लंबा रद्द अमल हमारी अवाम का, हमारे पार्लियामान का भी आया है। पार्लियामान में ये बात बार बार रेज़ हुई है। हमने कोशिश की थी कि इसका पैनामा बिल के हवाले से वहाँ भी एक जवाबदेही का तसलसल हो, और आज भी हमने कहा कि नेशनल एक स्टैंडिंग कमेटी है जिसको एक्टिवेट किया जाए ताकि पार्लियामान भी मैच्योर हो, और उसको इतना जो इन्होंने मफलूज किया हुआ है, बिल्कुल इर्रेलेवेंट करके छोड़ दिया है, सॉरी टू से, हुक्मरान जमात में, कि पार्लियामान जो इस वक्त किरदार अदा कर सकता था उसने नहीं किया है। अपोजिशन उसको कहाँ तक ले जा सकती है? हमने तो हर अमल पर उसको आगे तक ले जाए, और अभी कोशिश की है कि खुशरूबी से मामला सेटल हो जाए। जी शरीफ साहिबा, मैं यहाँ आपको रोकूंगी। जी यहाँ मैं रोकूंगी। इमरान खान साहब ने जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसका क्लिप मैं सुनाना चाहती हूँ, अगर वो प्ले हो जाए प्लीज। मेरा नवाज शरीफ की फैमिली को 40 साल से जानता हूँ, मेरा उससे क्या पर्सनल कोई, मेरा तो उसने कुछ नहीं लिया था नवाज शरीफ ने। बाकी भी जितने भी सियासी बड़े बड़े लोग हैं जिनकी मैं मुखालफत करता हूँ, मेरी ज़ाती तो उनसे कोई लड़ाई नहीं है। पाकिस्तान की तारीख में एक साल में फौरन कर्जा कभी इतना लिया ही नहीं गया जो इस साल लिया गया। 10 अरब डॉलर का कर्जा लिया गया। हमारे पास पैसा ही नहीं है मुल्क चलाने के लिए, और हमारे पैसे यहाँ से अमेरिका की स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक 10 अरब डॉलर सालाना मनी लॉन्ड्रिंग होकर मुल्क से बाहर जाता है। 1000 अरब रुपया इस मुल्क से चोरी करके बाहर भेजा जाता है। किस मुल्क में ताकतवर को कानून के नीचे नहीं लाया जाएगा, इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल ही नहीं है। शाह साहब, इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने क्लिप चलाया, उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की बात की। मौलाना फजल रहमान ने उन्होंने भी बातचीत की थी मीडिया से, और उनका कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म या नवाज शरीफ को पैसे मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से नहीं, बल्कि उनको पैसे जो उन्होंने नहीं वसूल किए थे उसकी वजह से उनको नाअहल करार दिया गया है। देखिए, मौलाना जो भी कहें, मैं समझता हूँ ये डिबेट अब बेमानी होकर रह गई है। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ फैसला आ चुका। इट्स डन। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि फैसले को दोनों पार्टीज तस्लीम कर चुकी हैं। सब ने कह दिया है, रिस्पोंडेंट्स ने कह दिया है, पिटिशनर्स ने कह दिया है, सर-ए-खम तस्लीम। फैसले को पूरी कौम ने एक्सेप्ट कर लिया है, PMLN ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। तो फिर मौलाना की बात की कोई अहमियत नहीं रहती। शेरी रहमान साहिबा ने 2 बातें की हैं, और दोनों इम्पॉर्टेंट बातें हैं। एक, उन्होंने कहा कि हमारी तवज्जो होनी चाहिए बहसीत एक पॉलिटिकल क्लास के कि सारा प्रोसेस पीसफुल रहे और कॉन्स्टिट्यूशनल रहे। तो मैं उनकी तायीद करता हूँ, सही कह रही हैं। पीसफुल रहने के इम्कान मौजूद है क्योंकि सब ने एक्सेप्ट कर लिया। झगड़ा तो तब होता है ना कि एक पार्टी के मैं नहीं मानती। एक नंबर 2, हमने आज बड़े अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है तहरीक इंसाफ के कारकुनों को कि ठीक है, आपको खुशी होगी आज कामयाबी हुई है, लेकिन महज़्ज़ब रहिए और पुरअमन रहिए और कानून को हाथ में न ले। अगर कोई तजावुज़ भी करता है तो आप सब्र का दामन न छोड़िएगा। एक तो पीसफुल के इम्कानात तो रोशन हैं, नंबर 1। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल के भी इम्कानात बड़े रोशन हैं, क्योंकि हमने आज कहा है और दीगर जमातें भी कह रही हैं कि अपोजिशन क्या कह रही है। अपोजिशन कह रही है कि हम इस चीज़ पर मुत्तफिक हैं कि जमहूरी सफ़र रवां दवां रहे और आइन के मुताबिक रहे। जी, मंजूर जो करारदाद की गई थी कि ये वाली पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करे। अब आइनी तरीका क्या है कि एक मेंबर हैं वो अपनी सीट खो चुके हैं जो वज़ीर आज़म थे, लीडर ऑफ द हाउस थे। ऑब्वियसली अब हाउस ने एक नया वज़ीर आज़म मुंतखब करना है। डी नोटिफाई हो गया ना, सदर इजलास बुलाएंगे और मुस्लिम लीग नवाज़ जिसको मुनासिब समझेगी नॉमिनेट करेगी, और इनके पास अददी अक्सरियत है, आसानी से ये अपना वज़ीर आज़म मुंतखब कर सकते हैं और ये इनका फ़ैसला होगा। जिसको मुनासिब समझेंगे उसको ज़िम्मेदारी सौंप देंगे। अब बातों से बात निकली और बात सामने आई कि शहबाज शरीफ साहब का नाम भी ज़ेरे गौर है। शहबाज शरीफ साहब में खुसूसियात होंगी, यकीनन होंगी, लेकिन एक दिक्कत भी है। दिक्कत ये है कि जब शहबाज शरीफ साहब को आप ऊपर लेके आते हैं तो आपके सामने 2 रुकावटें हैं। एक रुकावट ये है कि आपको एक इंटरम अरेंजमेंट करना पड़ेगा, जी, जैसे कि चौधरी शुजात साहब का हुआ
कौमी असेंबली की सीट जाहिर है वो लड़े और चौधरी शुजात साहब का हुआ और फिर शौकत अजीज साहब तशरीफ लाए। और दूसरी दिक्कत ये होगी कि जब शहबाज शरीफ साहब ऊपर आते हैं तो नीचे पंजाब की कशमकश शुरू हो जाएगी ना कि पंजाब का चौधरी कौन होगा, पंजाब का चीफ मिनिस्टर कौन होगा। देखिए पंजाब इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविंस और मुस्लिम लीग नून का वो बेस रहा है। तो वहाँ भी क्या होगा कि बाप ऊपर वजीर आज़म तो नीचे बेटा वजीर आला, ये कैसे होगा? देखिए ना, ये भी सोचना है। अब जब भाई भाई हो सकते थे तो हो तो सकते, पर एक भाई तो चले गए ना, एक भाई तो चले गए और वो अब खेल में नहीं है और वो अब पार्टी की सदारत भी नहीं रख सकते। कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक वो अब PMLN के भी एक रहबर तो रह सकते हैं लेकिन ओहदेदार नहीं हो सकते, ना इलेक्शन लड़ सकते हैं, ना वजीर आज़म रहे, ना वो पार्टी का कोई ओहदा रख सकते हैं। तो ये एक बड़ी मेजर डेवलपमेंट है। उसके बारे में यकीनन इनके पास बहुत से बासलाहियत लोग मौजूद हैं और वो अपना फैसला कर लेंगे, यहाँ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसकी कुछ झलकियाँ मैं पहले सुनवाना चाहती हूँ, फिर हम गुफ्तगू उसके बाद जारी रखेंगे। तीन बेंच जो था उन्होंने JIT पे हेयरिंग की, अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद जब डिसीजन के लिए कल अनाउंस हुआ कि जी 5 मेंबर साहबान इसका फैसला करेंगे, कम से कम हमारे लिए ये हैरान कुन जरूर है। मेरा नहीं ख्याल कि आप भी कोई इसकी एक मिसाल ढूंढ सकेंगे। हम समझते थे कि 62 और 63 ये भी आइन में तजावज़ात हैं जो एक डिक्टेटर के दौर की इंक्रोचमेंट है। ये हमारी नालायकी कह लें कि हम इसको निकाल नहीं सके। इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून की हुकूमत 4 जून 2018 तक अपना मैंडेट मुकम्मल करेगी और हम अपने कानूनी और आइनी ऑप्शंस को इस्तेमाल करेंगे। अली ज़फ़र साहब, यहाँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ जो एतराज़ात उठाए गए थे उसमें दो मोटे मोटे मैं जिक्र करती चलूँ। एक तो हमने क्लिप्स में सुना था, ये था 5 रुकनी बेंच का, चलें वो भी तस्लीम कर लिया, उनका कहना है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। दूसरा जो नाअहली जिस वजह से हुई थी वो तो कैपिटल FZE उसकी जो तनख्वाह ली थी वो एसेट था, रिसीवेबल था, उस पर अगर आप रोशनी डाल सकते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में तारीफ भी की गई है कि रिसीवेबल एसेट क्यों होना चाहिए वगैरह वगैरह। जी देखें, बड़ा सिंपल है, केस को 2 हिस्सों में आप तकसीम कर दें। 25 पेज की जजमेंट है। एक हिस्सा ये है कि क्या कोई मिस डिक्लेरेशन तो नहीं हुई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का अपना कानून है, बहुत सारी जजमेंट्स हैं हाई कोर्ट की भी और सुप्रीम कोर्ट की भी, कि अगर आप कोई मिस डिक्लेरेशन करते हैं और वो ऑन द रिकॉर्ड आ जाती है, उसमें कोई इबहाम नहीं है, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट खुद डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं आर्टिकल 62 के तहत और 63 के तहत नाअहल करार दे सकते हैं, डिक्लेरेशन दे सकते हैं ऐसी। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने जब इलेक्शन लड़ा नवाज शरीफ साहब ने, तो उन्होंने जो डिक्लेरेशन दी जो कि ऑन ओथ होती है, जिसमें कहा जाता है कि जो कुछ है मेरा मैं आपको बताऊंगा, उसके अंदर उन्होंने इस कंपनी का जिक्र नहीं किया और ये भी जिक्र नहीं किया कि मैं इस कंपनी से इतनी तनख्वाह ले सकता हूँ। वो जो रिसीवेबल है कि मैं तनख्वाह ले सकता हूँ, वो मिले ना मिले उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको डिक्लेयर करना होता है कि ये मेरा हक़ है, ये मेरी इंटाइटलमेंट है, ये मेरा रिसीवेबल है। वो चूँकि नवाज शरीफ साहब ने नहीं किया तो कानून में वो एक मिस डिक्लेरेशन है, और जब एक मिस डिक्लेरेशन हो तो आगे कानून ये कहता है कि आप फिर सादिक और अमीन नहीं रहे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस हिस्से में तो बड़े, मेरा ख्याल है, बिल्कुल कानून के मुताबिक फ़ैसला किया है। और उसमें ये कहना जो मैंने सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जनाब वो छोटा अमाउंट है या बड़ा अमाउंट है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि आपने छुपाया बात, आपने मिस डिक्लेरेशन की, आपने झूठ बोला कि नहीं, चाहे वो 1 रुपये का हो, 10,000 दिरहम का हो या मिलियंस ऑफ डॉलर्स का हो। दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हिस्सा किया वो मेरे ख्याल है बहुत उम्दा जजमेंट है। उसमें ये कहा कि जनाब जहाँ तक क्रिमिनलिटी का ताल्लुक है, जहाँ तक आपके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम है नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली के करप्शन का, मनी लॉन्ड्रिंग का और अपार्टमेंट्स को जो ज़िक्र है, ये सारा मामला जो है, ये चूँकि ट्रायल का मामला है इसलिए हम इसको नैब कोर्ट के पास भेजते हैं ताकि वो फेयर ट्रायल का प्रिंसिपल भी जो हम बात करते रहे बहुत सारे प्रोग्राम्स में, वो भी कायम रहे। तो मेरा ख्याल है ये दोनों हिस्सों में अगर आप जजमेंट को देखें
तो बिल्कुल दुरुस्त जजमेंट है। और जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसको थोड़ा बहुत लीगल रंग भी दिया गया, उसमें भी कोई मुझे जवाब नहीं नज़र आया जिसमें ये कहा गया हो कि जनाब हमने मिस डिक्लेरेशन नहीं की। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी स्टेटमेंट थी वो ये थी कि हाँ जी मिस डिक्लेरेशन थी लेकिन छोटी सी बात थी। आपको याद है वो बड़ा फेमस केस था एल कपून, जो एक माफिया का बॉस था और उसने बहुत सारे मर्डर्स किए थे यूएसए में, और वो मर्डर्स FBI उसके पीछे पड़ी हुई थी कि मर्डर्स के लिए पकड़े, लेकिन अल्टीमेटली वो टैक्स फ्रॉड में पकड़ा गया। सो वो मर्डर्स की अलग बात हुई लेकिन वो जेल चला गया टैक्स फ्रॉड में। तो ये बात नहीं होती कि आप पकड़े किस चीज़ में जाएं, चाहे आप मिस डिक्लेरेशन में पकड़े जाएं, चाहे आप करप्शन में पकड़े जाएं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला कर दिया है जो कि एक वो मिस डिक्लेरेशन पे था। डॉक्टर मलिक इस पे अगर आप मैं एक ऐसा करना चाहूँगा, बट देखिए जैसे कि अली ज़फ़र कह रहे थे कि डिस्क्वालिफिकेशन ने वजूहात बता दी। अब उस पर उन्होंने जो एक और बात जो मैं समझता हूँ काबिल गौर है वो ये है कि उन्होंने जो रेफरेंसेस भेजे हैं उस पर दो चीज़ें की हैं जो काबिल गौर हैं। एक, उन्होंने कहा कि 6 हफ्ते की उन्होंने टाइम लाइन दी है कि 6 हफ्तों के अंदर आपने रेफरेंसेस को फाइल करना है और 6 माह के अंदर आपने फैसला देना है, नैब ने फैसला देना है और इसकी भी सुपरविजन करेगा। आपको पता है कि नैब की कारकर्दगी आपके सामने है, साल हा साल करप्शन के केसेस में बैठे रहे। दूसरी चीज उन्होंने जो की है, उन्होंने एक जज मुकर्रर कर दिया है जो इस सारे प्रोसेस को ओवरसी करेगा। ये देखिए ना, दीज आर इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स, और इससे मैं समझता हूँ रिजल्ट ओरिएंटेड बना दिया सारे प्रोसेस को। ठीक है, लेकिन मैं वापस क्योंकि कैपिटल FZE पे आना चाहती हूँ, उस पर भी हम मजीद बातचीत करते रहेंगे। डॉक्टर मलिक, यहाँ मैं जजमेंट पढ़ रही हूँ। इट इज़ हियरबाय डिक्लेयर दैट हैविंग फेल्ड टू डिस्क्लोज हिज अनविड्रॉन रिसीवेबल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग एसेट्स, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस फ्रॉम कैपिटल FZE, अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में था कि एसेट्स की क्या तारीफ होनी चाहिए, रिसीवेबल्स की क्या तारीफ होनी चाहिए, अल्टीमेटली जो फैसला है वो तो सुप्रीम कोर्ट का है ना कि कानून का किस तरह से इंटरप्रिटेशन किया जाए। देखिए, और उनकी ये इंटरप्रिटेशन जी मैंने सुन ली। पहली बात तो मैं थोड़ी सी तफरीक कर दूं जो शाह साहब ने की, बड़ी मुअद्दबाना, मेरे बड़ा मुश्किल होता है किसी बात पे इख्तलाफ करना उनसे, लेकिन मेरे ख्याल में शाह साहब ने कहा सबने तस्लीम कर लिया, हमने तस्लीम नहीं किया, हमने मान लिया। अच्छा ये बताइए मुझे, ये समझाए, तस्लीम नहीं किया मान लिया, या खुदा के जी जी आप सुन मलिक साहब, अगर आप कान ऐसे नहीं पकड़ा, ऐसे पकड़ा, फर्क समझा दें, इंटरेस्टेड इन लिसनिंग, ये फर्क समझा दे, फर्क समझा दे। ऑनेस्टली मैंने तो आपको जवाब देने की कोशिश कर रहा था दरमियान में। अगर आप तस्लीम नहीं किया और मान लिया, व्हाट इज दिस? अगर आप 5 दफा भी पूछेंगे तो जवाब का मौका देंगे तो मैं दे पाऊंगा। ऑनेस्टली एजुकेट, दोबारा पूछ लीजिए। तस्लीम, हमने तस्लीम नहीं किया। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सेप्टिंग एंड एग्रीइंग। आप एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक जजमेंट दी है और मुल्क की सलामती को मद्देनज़र रखते हुए, मुल्क के आइन को मद्देनज़र रखते हुए आप कहते हैं आई एक्सेप्ट द डिसीजन। दैट डज नॉट मीन दैट यू एग्री विद द डिसीजन। तो पहली तो तफरीक मैं ये करना चाहता हूँ, मेरे ख्याल में अब ये बात समझ आ गई होगी, अंग्रेज़ी में मैंने कही तो समझ आ गई। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे देता हूँ। मसलन कौन कौन से फैसले जो हैं वो माने गए यानी एक्सेप्ट किए गए। 1955 का जो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी था सबने एक्सेप्ट किया। आप अग्री करती हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं जरा आवाज बुलंद कहिए ना। अच्छा आप आगे नहीं, फिर ये न्यूज़ का आर्टिकल है आज छपा हुआ। नहीं देखिए, ये तो आप बुरा मना रहे हैं मेरी बातों का। अगर आप मुझे चाहें कि मैं खामोश हो जाऊं तो मैं हो जाता हूँ, वरना बात ये है साहब कि अगर आपने बोला है तो मुझे भी मौका आपको देना चाहिए, मुझे भी बोलने दीजिए। बोलने का मौका दे रहे हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि अगर अभी आपने कैमरे के ऊपर खड़े होकर कह दिया कि सबने एक्सेप्ट किया 1955 का डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी और कोई एग्री नहीं कर रहा, अगर कोई कर रहा है तो बावाज़ बुलंद बोले, इंक्लूडिंग हमारे जो माहिर कानून है। इसी तरह आपने 58(2)B जो है एक्सेप्ट किया, सबने किया। 2 हुकूमतें उल्टाई 1990 की दिहाई के अंदर, 3 उल्टाई आपने, 1 वापस की, 2 उल्टाई। लेकिन क्या लोगों ने उससे अग्री किया? तो आइन की नहीं किया। भाई सुन लीजिए, मैं भी तो आइन का हिस्सा था ना। आपने सवाल पूछा, मुझे जवाब देने दीजिए क्योंकि मैं आपकी बात कतन नहीं काटता। आपने अयूब खान का मार्शल लॉ एक्सेप्ट किया, अग्री नहीं किया। आपने ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ एक्सेप्ट किया, अग्री नहीं किया। आपने परवेज मुशर्रफ का मार्शल लॉ एक्सेप्ट किया, अग्री नहीं किया। आपने भुट्टो की फांसी एक्सेप्ट की, अग्री की? कोई है इस कमरे में जो इस वक्त बोले कि हाँ हमने अग्री की? ये है फर्क एग्रीमेंट के अंदर और एक्सेप्ट। अच्छा आपने वजाहत कर ली शाह साहब जी। नहीं, मैं माजरत के साथ किसी ने एक्सेप्ट भी नहीं किया।
भुट्टो साहब के अदालती ये लीजिए दफे, ये लीजिए 58 ये तो हमने तो बहुत एहतराम से कहा कि चले माने लेते हैं, अब आप चाहती हैं एग्री भी करें। देखिए 58(2)B का आपने जिक्र किया, 58(2)B आइन का हिस्सा बन गई थी, ठीक है, और इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। शेरी ठीक कह रही हैं, 58(2)B आइन का हिस्सा रही, लोगों को उसमें इतराज था कि इसको सही इस्तेमाल किया गया, नहीं इस्तेमाल किया गया, और फिर आपने बैठ के 18वीं तरमीम में इत्तफाक के राय से उसको आइन से हटा दिया, हज़फ कर दिया 58(2)B को। लेकिन जब तक वो आइन का हिस्सा थी तो आइन ही थी ना। आप अग्री करती हैं? अच्छा, मैं 58(2)B से अग्री करती हैं? मैं नहीं करती, लेकिन मैं यहाँ भी कहना चाहती हूँ कि 62-63 पे भी बहुत डिबेट चलती रही है। ख्वाजा साद रफीक ने भी कहा, उन्होंने खुद तस्लीम किया अभी हालांकि वक्त था, हमने नहीं किया, अफसोस हुआ। अभी हालांकि मैंने आपसे मीठी बात नहीं की, मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि 2014 के धरने से पहले जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की, उसमें 62-63 को हटाने का आइन से उस पर इत्तेफाक हुआ था। जी देखिए अमर, बात ये है कि इस पर बड़ी बहस हुई पार्लियामेंट्री कमेटी जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात कर रही है कि ये 62-63 जो डाली गई थी उसमें बहुत से लोग जो हैं इस कमेटी में उन्होंने कहा कि ज़ियाउल हक साहब ने उसके स्कोप को बढ़ा दिया, ठीक है जी, और उसमें ऐसी चीज़ें डाल दी कि जो उसकी ओरिजिनल स्पिरिट थी उस स्पिरिट से वो उसकी शक्ल तब्दील हो गई, ठीक है। और हम चाहते हैं कि 62-3 जो है 62-63 जो है वो अपनी असली रूह और असली शक्ल में चली जाए। ये बहस हुई लेकिन इत्तेफाक नहीं हो सका। अच्छा शेरी साहिबा, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ 62-63 पे? जी बहुत वाज़ेह है। आज तो हम आइनी फ़ैसले को कबूल भी करते हैं, लेकिन और जो मैं आपकी तवज्जो से कहूँगी कि मुदस्सिर मलिक साहब जो कह रहे हैं कि हमने अग्री किया, एक्सेप्ट किया, नहीं, पीपल्स पार्टी ने कतन अग्री ना एक्सेप्ट किया था शहीद भुट्टो का अदालती कत्ल, और हम कोई 2 दहाइयों से उसको अपोज़ करते रहे, कोड़े खाते रहे, किले में अरेस्ट होते रहे, लंबी लंबी सोबतें बर्दाश्त की। तो लेट्स नॉट गेट इनटू व्हाट हमने क्या एक्सेप्ट किया, क्या अग्री नहीं किया, नहीं, हम दीवार बन के खड़े रहे उस वक्त के ताले आमिर के सामने। अब आई डोंट वांट टू गेट इनटू, मैं इस वक्त माहौल को और आलूद नहीं बनाना चाहती ये कि कौन क्या कर रहा था उस वक्त। दूसरी बात, ये आपने जो अभी सवाल उठाया बहुत अहम सवाल है, और इस पर आगे भी मैं समझती हूँ दूररस इसके असरात होंगे, डिबेट होगी। देखिए 62-63 बिल्कुल हमने इसको तब्दील करने की कोशिश की, क्योंकि ये नंबर 1 ज़ियाउल हक का क्लॉज़ है और इसके ज़िम्मे में बहुत कुछ आता है। फिर हमने ये भी कहा कि मगर ऐसा ना लगे, मेरी गुफ्तगू से ऐसा ना लगे कि हम अकाउंटेबिलिटी से हटते हैं, ये ना लगे ना, या कि हम फैसले से सहमत नहीं हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप समझते थे कि ये मतलब ये आपसे अप्लाई किया गया, आप इसे तस्लीम और आप हेयर स्प्लिट कर रहे हैं, फिर आप 58(2)B से मिला रहे हैं जो बिल्कुल अलग चीज़ थी, कोई मुआवजा नहीं हो सकता। फिर आपने ना पार्लियामेंट्री कमेटी में आपने इसकी, आपकी जमात ने रूलिंग हुक्मरान जमात से मैं मुखातिब हूँ, उसको उस पर आपने कोई वोट दिया। हम कहते रहे कि बेहतर होगा कि हम एक प्रॉपर अदालती और एहतसाबी अमल और उसके बिल को आगे लेके चलें जिसमें क्लैरिटी से, और ये बातें ज़रूर आती, मिस डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स उसमें उस ज़िम्रे में बिल्कुल आता। हमारा कहना था ये ज़ियाउल हक ने इंट्रोड्यूस किया और इट्स अ लिटिल वाइड, उसमें बहुत और बातें होती हैं, लेकिन ये जो आज फैसला आया मिस डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स, तो रोपा में भी मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, बहुत सारी चीज़ों में आता है। आप जब गोशवारे सबमिट करें तो इस पर आप मतलब सियासी शहीद तो ना बने ना कि ये हमारे साथ ऐसा हुआ है वैसा हुआ। 62-63B पे पीपल्स पार्टी की बहुत क्लियर पोजीशन है, और आपको याद है 18वीं तरमीम में भी नवाज़ लीग ने इस पर हर धर्मी की थी कि नहीं इसको ना निकाला जाए। अब ये सिचुएशन ऐसी, मैं फिर कहूँगी कि ये जो अदालत का फ़ैसला है ये असल में इनके एसेट मिस डिक्लेरेशन पे है, और बाकी और जो केसेस हैं वो नैप गए, और मिस डिक्लेरेशन पे वैसे भी बहुत से लॉज क्लियर हैं। तो आई एम वेरी क्लियर कि हमने इसको जी अली ज़फ़र साहब से मैं यहाँ पूछना चाहूँगी 62-63 क्योंकि हनीफ अब्बासी की भी पिटिशंस हैं इमरान खान साहब और जहांगीर खान तरीन के ख़िलाफ़, कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ भी अप्लाई हो सकता है यही सादिक और अमीन का इशू जो है, आपकी क्या राय है? देखें जी, अब तो एक प्रेसिडेंट आ गया है कि अगर किसी ने मिस डिक्लेरेशन की है और वो वाज़े है, उसमें कोई एविडेंस की ज़रूरत नहीं, कोई शहादत की ज़रूरत नहीं,
تو سپریم کورٹ ڈسکوالیفائی کر سکتا ہے. عمران خان صاحب کے خلاف جو کیس ہے اس کا میں نے تھوڑا بہت جو دیکھا ہے وہ کچھ تو الزامات پارٹی کے خلاف ہیں اور کچھ ایسے الزامات ہیں جو ان کے پبلک لائف میں آنے سے پہلے جب وہ میرا خیال ہے کاؤنٹی کرکٹ کھیل رہے تھے انگلینڈ میں اس زمانے کی باتیں ہیں اور اس کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں کہ انہوں نے لندن میں اپارٹمنٹ کس پیسے سے خریدی. تو میرا خیال ہے وہ مختلف کیس ہے, ٹوٹلی ڈفرینٹ کیس ہے, اور اگر اس میں سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ کوئی اور انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے تو سپریم کورٹ بالکل اس کیس کو بھی بھیج سکتی ہے آگے. لیکن اس میں کوئی مس ڈیکلریشن والا مجھے ایشو ابھی تک نہیں نظر آیا کہ کوئی ایسا موقف اختیار کیا ہو یا ایسا کوئی ڈاکیومنٹ آیا ہو جس میں مس ڈیکلریشن نظر آئے اس قسم کی جس قسم کی یہ تھی. یہ تو بڑی سمپل مس ڈیکلریشن تھی کہ آپ نے مان لیا کہ میں کمپنی میں ملازم ہوں, آپ نے مان لیا کہ میں نے پیسے لینے تھے, اور آپ کو چاہیے تھا کہ جب آپ ڈیکلریشن کر رہے تھے, جب آپ الیکشن لڑنے جا رہے تھے تو آپ اس کا ذکر کرتے, آپ نے کیوں چھپایا؟ یہ سپریم کورٹ نے سوال پوچھا. انہوں نے کہا جی ہم نے اس لیے چھپایا بیکاز ہم نے پیسے نہیں لیے. سپریم کورٹ نے کہا قانون میں یہ بات نہیں بنتی کہ آپ نے پیسے لیے یا نہیں لیے, آپ کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ آپ کو پیسے کی انٹائٹلمنٹ ہے, آپ پیسے لے سکتے ہیں, آپ کا ایک کانٹریکٹ ہے جس کے تحت, ایک معاہدہ ہے جس کے تحت آپ یہ پیسے کما سکتے ہیں, تو وہ آپ کا ایسٹ بنتا ہے اور وہ آپ کی ڈیکلریشن بنتی ہے, اس لیے آپ کو ہم ڈسکوالیفائی کرتے ہیں. تو یہ کیس ڈاکٹر ملک مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کچھ بہت بےتابی سے کچھ بولنا چاہ رہے ہیں. بولنا چاہ رہا ہوں, دو چیزیں کہنا چاہ رہا ہوں. پہلی بات ہے کہ 2002 کا الیکشن ہوا, اس وقت جو عمران خان صاحب کی زوجہ تھیں وہ ہیں دختر ہیں یورپ کے 6 یا 8ویں سب سے امیر آدمی کی. تو اس وقت مقرر تھا, میں ابھی نیازی سروسز کی بات نہیں اور اپارٹمنٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں, کہ 2002 کے الیکشن میں یا اس سے پچھلا الیکشن جو 1997-98 کا تھا اس میں انہوں نے اپنے یہ اپارٹمنٹ ڈکلیئر کیے تھے یا نہیں کیے تھے. ابھی میں وہ سوال نہیں اٹھا رہا ہوں, ابھی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی زوجہ, اس وقت ان کی شادی تھی, انہوں نے کیا اپنی زوجہ کے یورپ کے تمام اثاثے جو تھے وہ 2002 میں ڈکلیئر کیے تھے؟ وہ کیا صادق اور امین ہیں؟ اس وقت بھی یہی قانون تھا. انہوں نے کیا اپنے جو لندن کے اپارٹمنٹ تھے وہ ڈکلیئر کیے تھے؟ کیا وہ صادق اور امین ہیں؟ لیکن چلیے اس بات کو چھوڑ دیں, میں اپنی بات کرتا ہوں. اپنی بات میں یہ کرتا ہوں کہ ہم نے یہ یہاں پہ آپ کے پروگرام کے توسط سے غلط بات کی جا رہی ہے. جو کمپنی ہے اور اس کی چیئرمین شپ ہے وہ ڈکلیئر کی تھی, اس کے کاغذات عدالت نے دکھائے ہیں. جو عدالت نے بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان, پہلے میں آپ کو ایک ذرا فریم ورک دے دوں, پاکستان کی سرکار جو ہے وہ کیش کے اوپر چلتی ہے, یعنی جب آپ کیش لیتے ہیں تو اس بنیاد کے اوپر آپ کے اکاؤنٹس بنتے ہیں. پاکستان کی سرکار کے, منسٹری آف فائنانس کے, پاکستان کے بجٹ کے, یہ سب چیزیں کیش پر چلتی ہیں کہ جب پیسے لیے تب ڈکلیریشن کی. آج ایک نیا قانون بنایا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کے بیٹے کی کمپنی تھی جس کے آپ چیئرمین تھے, آپ پیسے لے سکتے تھے, کتنے؟ $3,000, 3 لاکھ روپے. آپ نے نہیں لیے, لیکن کیونکہ آپ لے سکتے تھے, جو آپ نے نہیں لیے اپنے بیٹے کی کمپنی سے, اس وجہ سے یہ آپ کا ایسٹ ہے اور آپ کو آج ہم نااہل قرار دیتے ہیں. لیکن سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہے اس میں بلیکس لاء ڈکشنری سے جو تعریف دیکھیے, دو قسم کے اکاؤنٹنگ, ایک منٹ ٹھہریے, 2 قسم کے اکاؤنٹنگ کے, آپ کسی اکاؤنٹنٹ کو لے لیں آن لائن اسی وقت ابھی لیں, اس میں اماؤنٹ ڈیو کا بھی آپ ایسے کیجئے, آپ ایسے کیجئے. اکاؤنٹ ڈیو, دیکھیے اکاؤنٹ ڈیو ہوتا ہے جب وہ ریسیویبل ہو, یعنی ہم ان کو کھاتا دیں جس میں لکھا ہو یہ ریسیویبل ہے. پرائم منسٹر نے اور ان کے صاحبزادے نے لکھ کے دیا یہ ریسیویبل نہیں ہے, کیش نہیں, آپ کرنا نہیں چاہتے, اس وجہ سے یہ بحث نہیں ہے, آپ کرنا نہیں چاہتے, اس وجہ سے یہ بے معنی ہے. لیکن اب کیونکہ معاملہ جیسے شاہ صاحب نے شروع میں فیصلہ ہم نے تسلیم کیا, فیصلہ ہم نے تسلیم کیا. دیکھیے آپ کو سوال ہی نہیں پوچھا, آپ کو آپ کہیں مان لیا نا. دیکھیں آپ کو پوچھنا چاہیے, ٹھہرے نا یار, آپ کو پوچھنا چاہیے کہ آپ نے کیا وزیر اعظم نے احترام کرتے ہوئے سپریم کورٹ کا ریزائن دے دیا؟ آنسر از یس. اس کے بعد کیوں سوال پوچھتے ہیں؟ پھر اگر سوال پوچھیں گے تو جواب سننے کا حوصلہ پیدا کریں, اور اگر جواب نہیں حوصلہ سننے کا تو پھر سوال مت پوچھیں. اصل میں بات, میں اس کو بس ایک ختم کرنا چاہ رہی ہوں شاہ صاحب, انٹرپریٹیشن آف دا لا جو ہے وہ سپریم کورٹ میں نے آپ کو کہا کہ آپ فرگسنز کے کسی بندے سے پوچھ لیں کہ اکروڈ اور کیش کی سٹیٹمنٹس میں کیا فرق ہوتا ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بحث اب بے معنی ہو کے رہ گئی ہے, فیصلہ ہو چکا ہے. یہ کہتے ہیں انہوں نے مان لیا ہے, چلے مان لیتے ہیں کہ انہوں نے مان لیا ہے, تسلیم نہیں کیا, نہ چاہتے ہوئے بھی مان لیا, دل پر پتھر رکھ کے مان لیا, لیکن مان لیا. آگے چلے.
आगे चलें हम भी आगे चलें और आगे देखना ये है कि मुल्क का जो निज़ाम है उसको आगे कैसे बढ़ाना है, जमहूरी प्रोसेस को आगे कैसे चलाना है, हमने इस्लाहात कैसे करनी है। अभी आपने एक स्मूथ ट्रांजिशन होना है, उसके बाद आपका वज़ीर आज़म मुंतखब हो जाएगा, ठीक, आपके पास नंबर्स हैं, बिल्कुल हो जाएगा, आपका हक बनता है, उसको तस्लीम कर लेंगे, हम तस्लीम करेंगे उसको। अगर जो लोग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के ज़रिए एक शख्सियत इलेक्ट होती है। फिर आगे है 2018 के इंतखाबात आने हैं, वो इंतखाबात किस नौइयत के होंगे, कैसी होंगे, उन पर सवालिया निशान लगेगा नहीं लगेगा, इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार होगा नहीं होगा, शफाफ निज़ाम होगा नहीं होगा, इंटरम सेटअप जो है वो कैसा होगा, वो कैसे मार्ज़ वजूद में आएगा। देखिए, इस पर हमें बैसियत पॉलिटिकल पार्टीज़ के बैठ के बात करनी चाहिए और कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि मुस्तकबिल के लिए सबके लिए आसानियां पैदा हों और इस मुल्क में डेमोक्रेसी जो है वो स्ट्रेंथन हो और इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग हो। ठीक है, और इस पे एक और जो सवाल बनता है कि अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहती हूँ कि अब इकामा का मामला जो है वो भी सामने आया है। आपके जो पार्टी के कुछ लोग हैं इनके पास इकामा मौजूद है, तो इसका मतलब अली ज़फ़र साहब ये भी हो सकता है कि अगर इस जजमेंट को देखा जाए उसके तहत वो भी क्या नाअहल करार दिए जा सकते हैं? देखें जी, मैं इस पे बड़ा क्लियर हूँ। इकामा एक्चुअली एक वीज़ा होता है, रेजिडेंट वीज़ा। अगर किसी ने इकामा लिया है वो पर से वो नाजायज़ नहीं है, वो गैर कानूनी नहीं है। सिर्फ़ गैर कानूनी जो होता है वो ये है कि आप उसको अपनी जब डिक्लेरेशन देते हैं, आप उसमें अगर उसका ज़िक्र करते हैं और ये कहते हैं कि हाँ ये मुझे इसलिए मिला है क्योंकि मैं इस कंपनी में मुलाजिम हूँ और मेरी इस कंपनी से इतनी इंटाइटलमेंट है, या किसी और वजह से जो मिला है, आप वजह अगर डिक्लेयर कर देते हैं और उसमें आप बता देते हैं कि मुझे ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट है और ये मुझे पैसे मिलने हैं, तो फिर उसमें किसी किस्म की मिस डिक्लेरेशन नहीं है। तो देखना ये है कि जिन लोगों के ये निकले हैं वीज़ाज़, रेजिडेंट वीज़ाज़, वो क्या वाकई ही उन्होंने डिक्लेयर किया था जब इलेक्शन लड़ा था कि नहीं। अगर उन्होंने नहीं किया था और उससे ज़ाहिर होता है कि उनकी कोई कंपनियां हैं जिससे उनको पैसा मिलना है, तो फिर तो ये जजमेंट बिल्कुल उन पर लागू होगी और वो भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है तो फिर उनके ऊपर इस जजमेंट का असर नहीं होगा कम अज़ कम। जी शाह साहब। जी, दो बात, एक तो जो अली ज़फ़र साहब कह रहे हैं ऑब्वियसली लॉ नोइंग है, दुरुस्त फरमा रहे हैं। बात ये नहीं है, बात एक और है। बात ये है कि मैं मुल्क का वज़ीर दिफा हूँ और मुझ पर मेरी कौम हालत जंग में है, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, दहशतगर्दी की लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है जी, और मैं यूएई की कंपनी का एक कमर्शियल कंसल्टेंट हूँ। क्या तासुर जाता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात आती है। मैं पाकिस्तान का प्लानिंग कमीशन का वजीर हूँ, मैं सीपैक के प्रोजेक्ट्स को ओवरसी कर रहा हूँ, ठीक है, और सऊदी अरेबिया की एक कंपनी का मैं लीगल एडवाइज़र हूँ। क्या तासुर जाता है। लोग आज जग हसाई हो रही है कि ये कैसी काबीना है कि सारी की सारी काबीना अकामा की काबीना है, अकामा पे है, क्या वजह है? काबीना भी नहीं रही सर। नहीं, वो तो जो थी वो सारी अकामा की काबीना थी। खुदा के लिए, पहले पनामा को कौम रो रही थी, अब अकामा को रोना शुरू कर दे। लेकिन अब ये भी सवाल है ना कि ये सारी अकामा जो ये सारी चीजें ये कहाँ से निकल रही? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए निकल रही हैं। देखिए जी, इलेक्शन कमीशन को इन चीज़ों का नोटिस लेना चाहिए। इलेक्शन कमीशन यकीनन इनका नोटिस लेगा और हो सकता है ये चीज़ें इलेक्शन कमीशन की तरफ चली भी जाएं और उनके तरफ रेफ़र भी हो जाएं। तो हमें इन चीज़ों से सीखना है। देखिए, मकसद ये है, खुदा न खासा, जैसे इमरान खान साहब ने कहा और दुरुस्त का, खुदा न खासा, मैं दयानतदारी से कह रहा हूँ, बड़ी ईमानदारी से, बड़ी इनकसारी से कह रहा हूँ, हमारा झगड़ा, हमारी लड़ाई किसी शख्सियत से नहीं है, किसी ख़ानदान से नहीं है, ठीक है। हम एक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं कि यार देखो, इस मुल्क में एक तबका है, वो मुख्तलिफ जगह हो सकता है, मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मुख्तलिफ एरियाज़ में हो सकता है, मुख्तलिफ प्रोफेशन में हो सकता है, जिसने इस मुल्क को नुकसान पहुँचाया है, मुल्क के ख़जाने को नुकसान पहुँचाया है, लूटा है, पैसा बाहर मुंतकिल किया है, जायदादें कमाई हैं, नाजायज़ जायदाद बनाना बुरी बात नहीं है, नाजायज़ ज़राए से जायदाद बनाई है, ये तबका पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में रुकावट बन चुका है। ये कहते हैं ना, ये ऐसी वो जोखें हैं जो पाकिस्तान का खून चूस रही हैं। हमें इससे निजात चाहिए, चाहे वो कहीं भी बैठा है, चाहे कहीं भी बैठा हो। शहरी साहिबा, ऐसा आपको भी लग रहा है कि
नवाज शरीफ साहब की जो सियासत है वो ख़त्म हो गई है, उनकी ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स, उनकी फैमिली की पॉलिटिक्स? जी, अभी तो आपके ही प्रोग्राम पे मैंने ये ट्वीट देखा जो चल रहा है मरीम नवाज शरीफ का, कि वहाँ अर्ज़ कर रही हैं कि वो वापस आएंगे और ये तो एक तवील जंग है। इस तरह का कोई इम्प्लिकेशन है कि मियाँ साहब वापस मंजरनामे पे, सियासी मंजरनामे की बात नहीं की, प्राइम मिनिस्टर हाउस की बात, प्राइम मिनिस्टर के मनसब की बात की। तो मुझे नहीं समझ आता ये कैसे होगा और ये किस ज़रिए से आएंगे। ये तो मैं आपसे ख़ुद पूछने वाली थी कि व्हाट इज़ द वे विच ही एनविजन्स दिस। मुदस्सर साहब अगर इसमें कुछ रोशनी डालना चाहे तो। मुसद्दक साहब, मुसद्दक, सॉरी जी, बता सकते हैं कि ये बार बार कहा जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे, किस तरह से वापस आएंगे? एक और इसी के साथ एक ये जवाब ये भी दे दें। रिव्यू फाइल करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बहुत लिमिटेड किस्म का रिव्यू फाइल ये भी साथ ऐड कर लीजिए। देखिए, आए या ना आए वो एक और बहस है। सवाल ये है, एक इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, नवाज शरीफ साहब बदकिस्मत शख्सियत है, उनको 3 दफ़ा वज़ारत उस्मा मिली, लोगों को 1 दफ़ा नहीं मिलती, इनको 3 दफ़ा मिली। क्या चौथी दफ़ा इनको चाहिए? क्या इनकी जमात में कोई और शख्सियत नहीं है? किसी को ग्रुप नहीं करेंगे, किसी को आगे आने का मौका नहीं देंगे, फिर वो ही आएंगे क्यों? डॉक्टर मलिक जी, दो अब सवालों के जवाब। पहली मरतबा हुए वज़ीर आज़म डिस्क्वालीफाई, पहले कभी हुए थे? याद पड़ता है? याद पड़ता है? नहीं, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ पहली मरतबा हुए हैं डिस्क्वालीफाई। देखिए, आप तो ये भी कह रहे हैं, सवाल का जवाब दीजिए ना, मुझे मौका तो दें। आप सवाल पूछते हैं, पहले दफा हुए हैं, पहले भी हो चुके, पहले भी हो चुके, 24 साल के लिए हो चुके। अच्छा चलिए इनकी बात मान लेते हैं। पहली दफा वो कब जेल में जाएंगे, पहली मरतबा वो एग्जाइल में जाएंगे, पहली मरतबा आपने उनको हुकूमत से निकाला है, 2 मरतबा पहले हुकूमत से निकाल चुके हैं, डिस्क्वालीफाई कर चुके हैं। चलें ये डिस्प्यूटेड है, निकाल दें। आपको अगर मैं मुगालता खाता हूं तो इसको निकाल दें। पहली दफा मुल्क बदर करेंगे, क्या क्या करेंगे? एवरी टाइम यू हैव डन दिस, ही इज कम बैक एंड ही इज कम बैक विद 2/3 मेजॉरिटी। आप एक मरतबा फिर करके देख लें। ये कोई ऐसी कोई नई बात है? आप कर लेना। जी हम ये कह रहे हैं, नहीं सुन लीजिए मेरी बात, हो गया ना, हमने मान ली बात, अब तारीख रकम होने दें। अब आप अपने पैरों पे सब खड़े रहें, ये ना हो कि 2-3 साल के बाद आप कहें कि कुछ अजीब सा फैसला लगा कि 3 जज थे फिर 5 हो गए, ये कुछ अजीब, ये मत करिएगा। अब कायम रहिएगा जहां जहां जिसने पैर लगाए हैं, बिलखसूस अहले कलम जो हैं, अहले दानिश जो अपने आप को समझते हैं, वो अपने पैर अब जमीन पे लगाएं और यहीं खड़े रहें और 5 साल के बाद यही गुफ्तगू करें जो आज कर रहे हैं। जी शरीफ, मेरी छोटी सी गुजारिश है, आई एम लेटिंग देम हैव देयर से। छोटी सी गुजारिश ये है कि देखिए, इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर का जो सिचुएशन में है, वो दरबारियों ने उनको कहाँ मिसलीड किया। अब भी आप कह रहे हैं वो डिस्क्वालीफाई पहले हुए। नहीं, आपकी बात नहीं कर रही हूँ, आपकी बात नहीं कर रही हूँ, किसी की भी आप कर रही हूँ। मैंने कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल आपकी पार्टी के लिए किसी शख्स के मुतालिक नहीं किया। नहीं, लेकिन आप क्या, आपकी मर्जी, आप कीजिए, आपका प्रोग्राम है, आपका हक है। आपके लोगों ने पॉलिटिकल बैटल, आप कहिए जी, चलिए प्लीज पॉलिटिकल बैटल समझा इसको और लीगल बैटल नहीं समझा। नंबर 1 ये नजर आ रहा था हमें। दूसरा, आप लोगों की, आपकी मैं बात नहीं करी, आपकी ज़ात की नहीं, आपकी मैं बहुत एहतराम करती हूँ, मगर चौधरी निसार ने भी ये अंदिया दिया है, चौधरी निसार ने बार बार ये अंदिया दिया है कि वहाँ पे एक ऐसा माहौल है कि अनइलेक्टेड लोग, दूसरे दरबारी सिकोफैंस वगैरह वगैरह मिसलीड कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को। अभी भी मैं समझती हूँ उनको मिसलीड किया जा रहा है। एंड दिस यू मस्ट, आपको सोचना चाहिए, इस पर विचार करनी चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर को आप 1 साल से क्या कहते आ रहे हैं। जो केसेस लड़े गए कोर्ट में, आप देखें, बाहर सियासी लड़े गए, लीगली बहुत लोग कह रहे हैं कि इन्होंने ठीक से केसेस को स्टडी नहीं किया, सीरियसली लिया नहीं, बात तर बात खुलती चली गई, तजादात था मुस्तकिल आप लोगों के, उनकी फैमिली के बयानात में। तो ये एक सियासी तकब्बुर जो आ गया है कि वी आर अनटचेबल, यानी हमें कोई हाथ नहीं लगा सकता। और अफसोस से मैं कहूँगी, इस वक्त अब सब एल कैपोन एक्सपर्ट्स बन गए, सब कुछ हो गया, क्योंकि आपने दरवाजे खुले रहने दिए इन चीज़ों पर। आप लोग सिर्फ इसको पॉलिटिकली हैंडल कर रहे थे कि ये पॉलिटिक्स है। नहीं, हर चीज़ सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है। आज हम एक आईनी और लीगल फैसला एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो लीगली दिस केस वाज मिस हैंडल्ड, आई एम सॉरी,
آپ لوگوں نے جواب دہی کے عمل پولیٹیکلی آلسو آپ لوگوں نے جواب دہی کے عمل کو کچھ نہیں سمجھا، اور مفادات کا تضاد تو دوسری بات ہے، لیکن یہ جو اس وقت سامنے آ رہا ہے آپ کے، اور میں سمجھتی ہوں کہ کوئی لیسنز، کوئی سبق سیکھیں کیا ہے جمہوریت کے حوالے سے، آگے جانے کے حوالے سے، مگر نظر تو آ رہا ہے کہ یہ ڈھٹائی اور سینہ زوری کا جو پلان تھا وہی چل رہا ہے، وہی چل رہا ہے، سبق نہیں سیکھے تو پھر کوئی بات نہیں. جی ڈاکٹر ملک، قانونی احسن اقبال صاحب نے بھی کہا کہ آئینی اور قانونی دو الزامات ہیں ہمارے اوپر. ایک یہ کہ ہم نے استثناء نہیں لیا. عمران خان صاحب نے کہا، میرے پاس بہت کم وقت ہے اور سوال بہت ضروری ہے، آئینی اور قانونی آپشنز کیا ہیں؟ کرنے لگا میں کہہ رہا ہوں میرے سامنے کیمرہ لگا ہے، آئینی اور قانونی آپشنز کیا ہیں؟ سن لیجئے یہ نہیں ہو رہی میں کر رہا ہوں نا، اس وقت تو میں بات کر رہا ہوں، آپ تو کر چکے ہیں بات. جی میں لیگل کیس کی بات کر رہا ہوں. لیگلی ہم استثناء لے سکتے تھے، ہم نے نہیں لیا. ہمیں ابھی قانونی ماہرین کہہ رہے ہیں آپ نے غلطی کی. میں کہہ رہا ہوں یہ بات میری سنیے، میری باری ہے. اسی طرح جورسڈکشن کو چیلنج نہیں کیا. عمران خان صاحب نے جورسڈکشن چیلنج کی، اس وجہ سے جورسڈکشن چیلنج نہیں کی کہ ہمیں توقع تھی انصاف کی. دوسری بات آخری میں کر دوں، نسیم حسن شاہ صاحب نے کیا لکھا؟ نسیم حسن شاہ صاحب کا ذرا وہ انٹرویو پڑھ لیں آخری، جس میں انہوں نے کہا آخر میں کہ غلطی ہو گئی. کیوں غلطی ہو گئی؟ کیونکہ انہوں نے ان کے جو جج تھے انہوں نے کچھ غلط کیا. کیا غلط کیا؟ انہوں نے کہا ایکویٹل چاہیے، سزا میں کمی نہیں چاہیے. موت کی سزا جو ہے اس کو کم کرنے کا نہیں کہہ رہے، ایکویٹل مانگ رہے ہیں. انہوں نے کہا ہم ناراض ہو گئے ورنہ وہ بچ سکتے تھے. ابھی چلا لیں وہ کلپ وہ پروگرام کا. تو اگر یہ غلطی ہم نے کی ہے تو یہ غلطی آپ نے بھی کی تھی. آپ نے بھی کہا تھا کہ ہمیں سزا میں کمی نہیں چاہیے، ایکویٹل چاہیے. لیکن کوئکلی کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ شاہ صاحب کو بھی وقت ہے، قانونی اور جو آئینی آپشنز کیا ہیں اس وقت؟ وہ ہمارے قانونی ماہرین دیکھ رہے ہیں، وہ ایک ریویو پٹیشن میں جانا چاہتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. اس کے علاوہ فیصلہ سپریم کورٹ نے دے دیا، ہم نے فیصلہ مان لیا، تسلیم نہیں کیا. جی شاہ صاحب، ملک صاحب نے فرمایا کہ ہم نے استثناء نہیں لیا، ہمارے پاس گنجائش تھی، ہم نے نہیں لیا. اس کی دیکھیے دو وجوہات ہیں میری رائے میں. ایک تو یہ ایک اس سیاسی نوعیت کا کیس بن چکا تھا، صرف لیگل نہیں تھا، پولیٹیکل بھی تھا. بالکل. اگر آپ استثناء لیتے، جب آپ قوم کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ چکے، آن دا فلور آف دا ہاؤس کہہ چکے کہ میں اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں، جب آپ نے والنٹیرلی اپنے آپ کو پیش کر دیا تو استثناء کیسے لیتے آپ نے تو خود کہہ دیا نا، آن دا فلور آف دا ہاؤس کہہ دیا، قوم کے سامنے کہا. تو آپ نے استثناء اپنا خود چھوڑا، کیونکہ پولیٹیکلی اگر آپ استثناء لیتے تو آپ کے لیے نقصان دہ ہوتا. علی ظفر صاحب، قانونی آئینی آپشنز کیا ہیں؟ کوئکلی. کوئی آپشن نہیں جی. اپیل آئین میں نہیں، ان میں نہیں، صرف ایک ریویو ہے. اور ریویو کا مطلب یہ ہے کہ انہی جج صاحبان کے پاس واپس جانا پڑے گا اور انہی کو بتانا پڑے گا کہ آپ کی جو ججمنٹ ہے اس میں یہ ایک نئی چیز آ گئی ہے، نئی ایک کوئی فیکٹ ہے یا نیا کوئی قانون ہے جو آپ نے نہیں دیکھا. تو بہت مشکل ہوتا ہے، وہ بہت محدود، اس کی لمیٹیشن بہت ہے، اس کی بہت 99% کیس ریویوز ریجیکٹ ہوتے ہیں. اور مجھے اس کیس میں کوئی ایسی ریویو والی بات نہیں لگ رہی، لیکن بہرحال ان کا حق ہے، وہ ریویو میں جا سکتے ہیں. لیکن آپ کو ایک اور بات بتاتا جاؤں کہ یہ آرٹیکل 62-63 کے تحت کوئی استثناء نہیں ہوتا پرائم منسٹر صاحب کو، کیونکہ وہ ان کی MNA کی حیثیت پہ چیلنج ہوتا ہے آرٹیکل 62-63 میں، پرائم منسٹر کے اس پہ نہیں ہوتا. تو اگر وہ لیتے بھی استثناء تو سپریم کورٹ اس کو نہ مانتا. یہ میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا جو میں نے بحث سنی ابھی تھوڑی سی اس میں. بہت بہت شکریہ. مجھے اجازت دیجیے، میں شکریہ ادا کرتی ہوں اپنے مہمانوں کا، ڈاکٹر مصدق ملک، شاہ محمود قریشی صاحب، شہری رحمان صاحبہ اور علی ظفر. بہت بہت شکریہ. ہماری ٹرانسمیشن جاری رہے گی.